صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھا ہو، یہ سوچ کر کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ اللہ آپ کی کوشش کے ایک قطرے کو سمندر بنا دے گا۔ بس آپ یقین رکھیں اپنے رب پر، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کو انکار نہیں کرتا۔ دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اب کون ہرا سکتا ہے مجھے، تو میرے دل کا آخری ڈر تھا۔ چھوڑ یہ بات کہ ملے زخم کہاں سے مجھ کو، زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے، کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سنو اے عام سی لڑکی، تم بہت خوبصورت ہو، بس ہر کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ سکے، مگر ایک دن تمہیں ایک ایسے شخص سے نوازا جائے گا جس کے پاس وہ بصارت ہوگی جو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ سکے گی۔ بس دنیا بھر کے لیے بھلے تم عام سی لڑکی ہو، مگر وہ پھر بھی تمہیں یہی کہہ کر پکارے گا، سنو اے چاند سی لڑکی، تم بہت خاص ہو۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روک سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا، جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے۔ میں سالار نہیں ہوں، پر میں اللہ کی جانب پلٹنا چاہتی ہوں۔ وہ جلد راستے بھی دکھائے گا، اسباب بھی بنائے گا، کیونکہ آزمائش کے بعد ہی راحت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب اللہ تمہاری ایسی مدد بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی نہ کوئی اختتام، اور تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ مطمئن ہو جاؤ، یہ دکھوں کا کٹھن راستہ اب ختم ہونے کو ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جایا کرتے ہیں۔ اڑنے کا شوق ضرور رکھو، لیکن اپنی ڈور صرف اپنے محرم کے ہاتھ میں رکھو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جایا کریں ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کے دل آزاری کی ہو، تہمت لگائی ہو، برا بھلا کہا ہو۔ پریشان کیا ہونا، سب اللہ پر چھوڑ دیں اور یقین مانیں ہمارا رب کچھ بھی نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ بے شک ساتھ صرف رب دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہی اصل محبت اور انسانیت ہے۔ اور جب یقین والوں کے لیے وہ عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے، پھر جو مانگا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔
औरत का बड़ा रुतबा रखा है रब ने, आती है तो रहमत बनकर, जाती है तो जन्नत बनकर। रिज़्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। बुरे इंसान की सोबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक। क्या हुआ फिर मायूस हो रही हो? सब फिर से उलझ गया है, थक गए हो अब तुम। बस अब चाहते हो कि ये जिंदगी खत्म हो जाए, तो ये सोचो उस रब के आगे कैसे मायूस होकर जाओगे। और वो जब पूछेगा मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया, जब मैंने वादा किया है कि मैं साथ हूँ तो तुमने यकीन क्यों ना किया, तो बताओ क्या दोगे जवाब? हाँ, मसाइल थका देते हैं, लोग जीना मुश्किल कर देते हैं, लेकिन याद रखो ये सब आर्जी है। तुम्हारी जिंदगी के काले बादल छट जाएंगे, सवेरा होगा, बस यकीन रखो। जिंदगी के लिए एक बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। किसी का दिल नहीं रखा किसी ने, मगर रोजे सभी ने पूरे रखे। अल्लाह जो दरवाजे आपके लिए बंद करता है ना, उनमें आपके लिए शर होता है, फिर चाहे वो आपको कितने ही महबूब क्यों ना हो। और फिर जब आप उन पे भी सब्र करते हैं तो वो आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनमें आपके लिए सिर्फ खैर होती है। यकीन जाने आपका रब आपसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम्हारा रब वही है जिसने समुंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हो, मगर तुम्हारा रब वही है जो उनका था। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे प्यारे अल्लाह, तेरा बेहिसाब शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दुख 3 लफ्ज़ों पर आकर ख़त्म, अल्लाह है ना। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे कायनात की कोई भी चीज़ तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, और जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं है उसे तुम्हारी दुआओं के अलावा कायनात की कोई भी चीज़ तुम तक नहीं ला सकती। तुम सोचते हो कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारे लिए नया रास्ता बना सकती हैं। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान मजीद में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। और जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बनाता है। और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो हर किसी के पास नहीं होता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन कभी कभी हार जाती हूँ, कुछ बातें सुनकर, कुछ लहजे देखकर। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुहाफ़ज़ा करना है। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके इख्तियार में है। जितनी ज़ियानत किसी की बात का जवाब देने के लिए ज़रूरी है, इससे कहीं ज़्यादा ज़ियानत उसकी बात को समझने के लिए ज़रूरी है। अल्लाह की मोहब्बत एक समुंदर जैसे किनारे पर खड़ा इंसान महसूस नहीं कर सकता। अगर आप अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो आपको उसकी गहराइयों में उतरना होगा। परेशान क्यों होते हो? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है तो क्या हुआ? क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। बेहतरीन सब्र तो वो है जिसमें किसी से शिकायत नहीं की जाती, बस अपने रब से बात की जाती है।
वीरान जिंदगी थी, मैं खाक छानता था। मौला तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था। तलाश इल्म तो पहुंच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में। बता तो सही वो कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में। अगर तुम कुरान पाक को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। किसी को इखलाक में शिकस्त देना जंग में शिकस्त देने से बड़ी जीत है। हमेशा मजबूत रहें चाहे जितना भी गड़ा वक्त आ जाए। बड़ी से बड़ी परेशानी में मजबूत रहना इस परेशानी से मुकाबला करने की हिम्मत देता है। मनफी सोच आपकी परेशानी को ज़्यादा बढ़ाकर आपकी मुकाबले की सलाहियत को दबा देती है। रजू और अरूज में चारों हुर्फ एक जैसे हैं, बस तुम अपने रब की तरफ रजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। हर किसी की नेमतें भी अलग है, हर किसी की आजमाइश भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग है। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचे कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अता है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है, और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठते हुए हाथों की लाश रखना आती है। सबसे बड़ी दौलत है यकीन, जिसे अल्लाह नजर नहीं आता लेकिन उसके होने का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का, उसके सब सुनने का, उसके सुनकर समझ लेने का, उसके देने का यकीन। अल्लाह को यकीन से बड़े दिल वाले बहुत महबूब है, जो हर गम में कहते हैं अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। वो जो दिलों के राज जानता है, वो जो वाकिफ है सीनों की बातों से, वो जो वाकिफ हाल है जिंदगी के हर मोड़ से, वो जो आपकी हर पल में आपके साथ है। भला बताओ तो उसे गम बताने के बजाय आप क्यों इंसानों को ढूंढते रहते हैं। क्यों गम सुनाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत है आपको? क्या अल्लाह से ज़्यादा भी कोई ताकतवर है? नहीं ना। तो लौट आओ अपने रब की तरफ और कह दो हर गम उससे। बहुत प्यार आता है अल्लाह पाक को जब आप किसी बच्चे की तरह जाकर अल्लाह को अपने सारे दिन की कहानी सुनाते हो, जब आप रो रो कर अल्लाह को बताते हो मुझे फला चीज़ चाहिए, जब आप अपने टूट जाने पर अपने रब के सामने सजदे पे सजदा करते हो। यकीन करें बड़ा प्यार आता है उस वक्त अल्लाह को अपने बंदे पर। सिर्फ एक मोहब्बत है जिसमें कोई ताना नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई रुसवाई नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई बेएतबारी नहीं, और वो है अल्लाह की मोहब्बत। परेशानियों में लेकिन मुतमिन हो कि अल्लाह सब देख रहा है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। उम्रों ने की है कैलेंडरों से छेड़खानी, वो खेलने वाला इतवार अब फिक्रों में गुजर जाता है। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बनकर अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयान खामोशियाँ लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेकर उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेटकर तुम्हारा इस्तकबाल करता है, अपने परसकून सी याद में लपेटकर दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है, अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पर नूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देरी है। जो चीज़ आपके नसीब में लिखी गई हो वो कोई चाहकर भी आपसे छीन नहीं सकता है, वो तुम्हारा ही रहेगा। कोई तुम्हारे मुंह का नवाला तो छीन सकता है, मगर नसीब का लिखा कभी नहीं छीन सकता। जिसने तुम्हें पैदा किया है उस पर भरोसा रखो। इंसान पर बुरा वक्त ज़रूर आता है, मगर कुछ भी हमेशा नहीं रहता।
پتہ ہے کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انہیں چھپانے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا کے لیے اٹھنا، یہ نشانی ہے اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، محبتیں اور نفرتیں بھی۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما، آمین۔